So now let's start with the deficiency of critical elements. So now let's start with the deficiency of essential elements. Now associated with the deficiency, I am dealing with one term here, that is critical concentration. Concentration of mineral element, concentration of essential element below which the growth of plant is inhibited, that concentration is known as critical concentration. तो बात समझ आ रही है, critical concentration किसको कहेंगे? Concentration of mineral element जिसके नीचे, below which the growth of the plant that is inhibited. So we can write this definition. Concentration of essential element below which plant growth is inhibited. That is critical concentration. अगर एलिमेंट की वैल्यू, एलिमेंट की कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन से नीचे है, कम है, तो हम कहेंगे कि ये जो एलिमेंट है वो डेफिशिएंट है, राइट? सो इफ कंसंट्रेशन इज बिलो क्रिटिकल वैल्यू, so we will say that element is deficient. जब एलिमेंट डेफिशिएंट अमाउंट के अंदर प्लांट में प्रेजेंट है तो प्लांट के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस पाए जाते हैं, और ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है इनको हम कहते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स. सो प्लांट शोज सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस. And these morphological changes, they are known as deficiency symptoms. Now, deficiency symptoms of the plant, they are also associated with the mobility of element. मैंने आपको बताया था starting of chapter के अंदर that on the basis of the mobility, the two types of the elements they can be there. So here now I will be discussing that two categories. Mobile elements and immobile elements. Mobile elements नाम से ही पता चल रहा है, these elements they can move from the old leaves, senescent leaves to young leaves as well as growing tips. So mobile elements, they can freely move from old leaves to growing points, growing tips of the plant, to young leaves. Immobile elements, as the name suggests, now that movement, free movement by the elements that is absent, they cannot freely move. अब मोबाइल एलिमेंट्स फ्रीली मूव कैसे कर सकते हैं? जो ओल्ड लीव्स है, सेनिसेंट लीव्स है, सेनिसेंट लीव्स के अंदर जिन बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इन बायोमॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा
and due to the breakdown, now they can be easily mobilized to the growing parts of the plant. So how these mobile elements, they can be mobilized? Because in the old leaves, biomolecules containing these elements are broken down तो बायोमोलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होगा, तो जिसकी वजह से ये जो एलिमेंट्स है दे कैन बी इजीली मोबिलाइज्ड. But in the case of the immobile category, now such type of the condition is absent. Now why it is absent? Because these elements now they are part of structural component of cell. They are part of structural component of cell. So one example which I can cite here, that is cell wall. That is the elements which are part of the cell wall like calcium. कैल्शियम का मोबिलाइजेशन नहीं होगा बिकॉज ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के अंदर प्रेजेंट है. नेक्स्ट वन, सो नाउ यू कैन इजीली थिंक ऑफ कि अगर मोबाइल एलिमेंट्स की प्लांट में डेफिशिएंसी हुई तो पहला डेफिशिएंसी सिम्टम कहां पर अपीयर होगा? दैट इज यंग लीव्स और द ओल्ड लीव्स ऑफ द प्लांट. यस, यू प्लीज सी हियर. तो यहां पर मैं ये प्लांट फॉर्म कर रही हूं. प्लांट के अंदर लेट्स से ये जो लीव्स है ये ओल्ड है, दीज आर ओल्ड लीव्स, और ये जो यहां पर मैं लीव्स बना रही हूं दीज आर यंग लीव्स, राइट. तो अगर मोबाइल एलिमेंट्स की प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो पहला डेफिशिएंसी सिम्टम कहां पर नजर आएगा? ओल्ड लीव्स के अंदर कि यंग लीव्स के अंदर? तो देखिए यहां पर अब ओल्ड लीव्स के अंदर तो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दीज एलिमेंट्स दे कैन इजिली बी मोबिलाइज्ड इनटू द यंग लीव्स. इट मीन्स यंग लीव्स के अंदर तो अब ये जो एलिमेंट है वो अवेलेबल हो गया. तो अगर यंग लीव्स में ये एलिमेंट अवेलेबल हो गया तो अब डेफिशिएंसी सबसे पहली बार कहां पर नजर आएगी? ओल्ड लीव्स के अंदर. दिस इज ओके. जो यंग लीव्स की डेफिशिएंसी है वो किसने पूरी कर दी है? ओल्ड लीव्स ने. तो पहला डेफिशिएंसी सिम्टम कहां पर नजर आएगा? ओल्ड लीव्स के अंदर. सो यू कैन राइट दिस इंफॉर्मेशन हियर. डेफिशिएंसी सिम्टम first appears in old leaves. Right, now let's see what is the scenario with respect to the immobile elements. अब immobile elements है वो old leaves से young leaves के अंदर movement नहीं शो करते. अगर movement नहीं शो करेंगे तो अब पहला deficiency symptom नजर आएगा young leaves के अंदर. So now here the first deficiency that will appear in the young leaves. So now let's write name of mobile and immobile elements here. तो mobile की कैटेगरी के अंदर आप एग्जाम्पल्स यहां पर लिखेंगे, that is नाइट्रोजन, पोटाशियम, magnesium, and in the immobile category you will write one main example here, that is कैल्शियम. तो कैल्शियम अब आप आराम से सोच सकते हैं कि इसकी मूवमेंट ओल्ड लीव से यंग लीव्स के अंदर क्यों नहीं होती है? बिकॉज कैल्शियम इट इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल, दैट इज सेल वॉल. और सेल वॉल के अंदर ये कहां पर प्रेजेंट है? सीमेंटिंग लेयर के अंदर, दैट इज मिडल लैमेला. इन द मिडल लैमेला देयर इज प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम पैक्टेट. अब कुछ डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन डेफिशिएंसी सिम्टम्स को यहां पर हम डिस्कस करेंगे. नाउ सम ऑफ द डेफिशिएंसी सिम्टम्स.
Now the first one, that is chlorosis. Now chlorosis is yellowing of leaves. अब ये yellowing of leaves किसकी वजह से होती है? That is due to non-synthesis of chlorophyll or due to destruction of chlorophyll. Now chlorosis, it is usually followed by necrosis. Now what is necrosis? This is death of tissue. Chlorosis is yellowing of leaves. तो अगर लीफ की येलोइंग होगी, लीफ के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा, तो फूड सिंथेसिस विल नॉट अकर. सो व्हाट इज द अल्टीमेट रिजल्ट? दिस विल रिजल्ट इन द डेथ ऑफ टिश्यू, एंड डेथ ऑफ टिश्यू, दिस इज नोन एज नेक्रोसिस. Another one, that is growth is below the normal level. So you can say this is stunted growth. Then premature leaf fall. Premature leaf fall as well as buds. Delayed flowering. Late flowering is there. So these are few deficiency symptoms. तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट इन डेफिशिएंसी सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इन एलिमेंट्स की यहां पर हम नाम लिखेंगे. अब कौन कौन से एलिमेंट्स इन डेफिशिएंसी सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अब इन एलिमेंट्स का यहां पर हम नाम लिखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लोरोसिस से. नाउ क्लोरोसिस, इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ nitrogen, potassium, sulfur, molybdenum, manganese, magnesium, zinc and iron. तो जितने भी एलिमेंट्स का मैंने यहां पर नाम लिखा है, इन सारे एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी से जो डेफिशिएंसी सिम्टम प्लांट में अपीयर होगा, दैट इज क्लोरोसिस, येलोइंग ऑफ लीव्स. इनमें से ये जो फर्स्ट 4 एलिमेंट्स का नाम लिखा, यस, फर्स्ट 4 एलिमेंट्स, इनकी डेफिशिएंसी से सेल डिवीजन इनहिबिट होगी. यस, देयर इज इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, राइट. देन दीज 3 एलिमेंट्स, दैट इज नाइट्रोजन, सल्फर एंड molybdenum, ये जो 3 एलिमेंट्स है, अगर प्लांट के अंदर इनकी डेफिशिएंसी हुई, देन दिस विल रिजल्ट इन लेट फ्लावरिंग, delayed flowering is there. Yes. Now the elements which are responsible for the necrosis, जो elements necrosis के लिए responsible है, that is calcium, magnesium, potassium and copper. अगर इन 4 एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी होगी प्लांट के अंदर, दिस विल रिजल्ट इन डेथ ऑफ टिश्यू, दैट इज नेक्रोसिस, स्पेशली लीफ टिश्यू. ये जो एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी है, दे रिजल्ट इन द नेक्रोसिस स्पेशली ऑफ लीफ टिश्यू इज देयर. So this was all about the deficiency symptoms. After the deficiency symptoms, now I will be discussing toxicity associated with the micronutrients. Now let's discuss toxicity here. I had discussed this earlier that micronutrients, they are the mineral elements, they are essential elements which are required by the plant in very small amount. They are required by the plant in very small amount, or you can say they are required by the plant in traces. That's why these micronutrients, they are known as trace elements. अगर इन trace elements का moderate decrease होता है plant के अंदर, there is moderate decrease
in the concentration of these elements in the plant, then this will result in deficiency of the element. पर अगर इन एलिमेंट्स का प्लांट के अंदर मॉडरेट स्लाइट इंक्रीज होता है, अगर स्लाइट इंक्रीज होगा, सो दिस विल रिजल्ट इन द टॉक्सिसिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स. सो यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ये एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन के अंदर प्लांट में रिक्वायर्ड है, विच इज वेरी मच लो. और अगर इससे कंसंट्रेशन थोड़ी सी डिक्रीज होगी, सो दिस विल रिजल्ट इन द डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट. एंड इफ द कंसंट्रेशन इट इज स्लाइटली इंक्रीज, दिस विल रिजल्ट इन द toxicity of element. Now with respect to the toxicity, here I will be discussing one term, that is CTL. CTL, that is critical toxic level. Now critical toxic level is the concentration of the element in the tissues. Yes, concentration of the element in the tissue which results in the reduction of 10% dry weight of tissue. तो जिस concentration के ऊपर 10% reduction होगा dry weight of tissues का, तो that concentration we will be calling it as critical toxic level. So I can write this information here. So it is concentration of the element in the tissue which results in the reduction of 10% dry weight of plant, or you can say dry weight of tissue. अब प्लांट के अंदर जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स फाइंड करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है. नाउ व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द टॉक्सिसिटी सिम्टम्स? क्योंकि जब प्लांट के अंदर किसी एलिमेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, so excess of concentration of one element, it can induce deficiency of other element. You are getting this point? एक एलिमेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, इसकी वजह से देयर कैन बी डेफिशिएंसी ऑफ द अदर एलिमेंट इन द सेल. अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए यहां पर मैं एक एग्जाम्पल साइट करूंगी, एंड द एग्जाम्पल इज विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नीज टॉक्सिसिटी. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. जब प्लांट के अंदर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होती है, then the classic symptoms, the characteristic symptoms which are shown by the plant, that is brown spots on the leaf, and these brown spots, they are surrounded by chloritic veins. तो लीव्स के ऊपर आएंगे ब्राउन स्पॉट अपीयर करेंगे, और ब्राउन स्पॉट्स के आसपास प्रेजेंट होंगी क्लोरेटिक वेन्स. क्लोरेटिक मीन्स येलो वेन्स, येलोइंग ऑफ वेन्स इज देयर. अब जब मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होगी प्लांट के अंदर, दिस विल इंड्यूस डेफिशिएंसी ऑफ 3 एलिमेंट्स, दैट इज आयरन, magnesium and calcium. Now how the deficiency of these elements, they can be created due to the manganese toxicity, that I will explain here. Now what happens, ये जो manganese है, it competes with the iron as well as magnesium for the uptake. आयरन और मैग्नीशियम दोनों के साथ compete करता है for the uptake by the plant. तो अगर अपटेक के लिए compete करेगा, so this will definitely result in the decrease uptake of iron and magnesium. अगर आयरन और मैग्नीशियम का अपटेक प्लांट के लिए डिक्रीज होगा, so this will result in the deficiency of elements. So one deficiency is there because manganese competes with iron and magnesium for uptake.
Second is manganese also competes with magnesium for binding with enzymes. जिन एंजाइम को मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है, उन एंजाइम्स के साथ साथ बाइंडिंग साइट पर बाइंड करने के लिए और कौन कंपीट कर सकता है? मैग्नीज, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन दी एक्सेसिव अमाउंट, टॉक्सिक कंसेंट्रेशन. नेक्स्ट वन, अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हुई तो उससे क्या होगा? इट विल प्रिवेंट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन to shoot apex. मैग्नीज की अगर टॉक्सिसिटी हुई, उसकी वजह से कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट टू द शूट एपेक्स दैट इज प्रिवेंटेड. तो इन तीनों रीजंस की वजह से ये जो तीन एलिमेंट्स है, इनकी डेफिशिएंसी होगी व्हेन देयर विल बी टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीज. आयरन और मैग्नीशियम के बारे में मैंने अभी यहां पर बताया था कि ये जो आयरन है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल सिंथेसिस. मैग्नीशियम, इट इज द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल. अगर आयरन और मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हुई तो क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं होगा. अगर क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं होगा, दिस विल रिजल्ट इन येलोइंग ऑफ लीव्स. यू नो इट वेरी वेल दैट येलोइंग ऑफ लीव्स, व्हाट इट इज नोन एज? दिस इज नोन एज क्लोरोसिस. तो देखिए अब यहां पर कि डेफिशिएंसीज हुई अगर इन एलिमेंट्स की, उसकी वजह से एक डेफिशिएंसी सिम्टम क्या ऑब्जर्व हो सकता है प्लांट के अंदर? दैट इज क्लोरोसिस. और वही सेम कंडीशन तो यहां पर नजर आ रही है, दैट इज दिस प्रेजेंस ऑफ क्लोरोटिक वेन्स. यस, तो इट मीन्स मैग्नीज की टॉक्सिसिटी की वजह से ये जो सिम्टम्स यहां पर नजर आ रहे हैं, एक्चुअली दे आर नॉट द टॉक्सिसिटी सिम्टम ऑफ मैग्नीज. They are deficiency symptoms associated with these elements. So you got this point कि toxicity symptoms को find करना difficult क्यों है? क्योंकि जब एक element की toxicity होगी, it results in the deficiency of other element. तो जैसा यहां पर explain किया, अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हुई तो उसकी वजह से तीन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी होगी, दैट इज आयरन, magnesium and calcium. So it means I can put one question here. अगर इस माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी होगी तो इस टॉक्सिसिटी की वजह से किसकी डेफिशिएंसी हो रही है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की? यस, ये तीनों के तीनों कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट की कैटेगरी के अंदर. तो वी कैन राइट दिस इंफॉर्मेशन हियर कि अगर इस माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी होगी, सो दिस विल रिजल्ट इन द डेफिशिएंसी ऑफ macronutrients. So this was all about the toxicity symptoms. So now after the toxicity symptoms, now I will be discussing technique of hydroponics, जिसके अंदर हम plant को grow करेंगे in a soilless condition. Soilless culture I will be dealing now. So now let's start with hydroponics. The technique of hydroponics, it was first discovered, it was first given by scientist Julius von Sack in the year 1860. Now for the first time Sack demonstrated कि जो plants है उनको हम grow कर सकते हैं in a defined nutrient solution in the absence of soil. The plants can be grown to the maturity in a soilless condition in a defined nutrient solution. And what this technique of growing plant it is known as? This is known as hydroponics. So let's write the definition for this. It is a technique of growing plants
in a defined nutrient solution in the complete absence of soil. अब जिस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन के अंदर हमने प्लांट को ग्रो करना है, दैट न्यूट्रिएंट सोल्यूशन मस्ट कंटेन द एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स। तो जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनकी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन उस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, सो दैट दे कैन कॉज द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। तो जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जिसके अंदर सारी ये रिक्वायरमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, तो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन जिसके अंदर ये एसेंशियल एलिमेंट्स एप्रोप्रिएट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को हम कहते हैं बैलेंस सोल्यूशन or it is also known as normal solution. So now I will be discussing setup of water culture here. Let's discuss what is the setup of water culture. वाटर कल्चर के लिए या तो हमें चाहिए ग्लास जार और इवन द पॉलिथीन बॉटल्स, दे विल ऑल्सो वर्क। सो आई एम मेकिंग अ कंटेनर जिसके अंदर हम प्लांट को ग्रो करेंगे। यस, सो दिस इज अ ग्लास जार। अब ये जो ग्लास जार का माउथ है, इसके अंदर हम फिक्स करेंगे कॉक, इसके अंदर हम स्प्लिट कॉक फिक्स करेंगे सो दैट द प्लांट कैन बी इजिली सपोर्टेड और अदर रिक्वायरमेंट्स लाइक द फनल्स और ट्यूब्स दे कैन इजिली बी फिटेड हियर। नाउ over the top, over the mouth of the jar, now I will be placing a funnel. Yes, the funnel is placed here. So now you can simply think of what is the function of this. funnel की help से जो nutrient solution है इस glass jar के अंदर हम pour करेंगे। राइट, प्लांट को यहां पर प्रॉपरली सपोर्ट देकर हमने यहां पर माउथ के ऊपर प्लेस करना है। यस, सो दिस इज अ प्लांट विच इज प्रॉपरली सपोर्टेड एट द माउथ ऑफ द जार। ग्लास का ये जो माउथ है, ये ग्लास जार का जो माउथ है, साथ ही में हम इसके अंदर प्लेस करेंगे एरेशन ट्यूब। एंड एरेशन ट्यूब, दिस इज फॉर द गैसियस एक्सचेंज पर्पस। अब ये जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन यहां पर हमने डाला है, इस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन को रेगुलरली एयरेट करना है सो दैट द प्रॉपर गैसियस एक्सचेंज इज देयर। एंड आफ्टर एवरी 2 to 3 days ये जो न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है इस जार में से हम रिप्लेस करेंगे। अब ये जो वाटर कल्चर है, अब देखिए अब इसको हम किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं।
हम 2 वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। 2 वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट। एक जो वाटर कल्चर एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर हम डालेंगे बैलेंस सोल्यूशन, यस, और इस बैलेंस सोल्यूशन के अंदर प्लांट को ग्रो करेंगे। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जो बैलेंस सोल्यूशन है उसके अंदर सारे एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे इन द रिक्वायर्ड अमाउंट द विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एज वेल एज रिप्रोडक्शन। साथ ही में जो हम वाटर कल्चर यहां पर इनिशिएट कर रहे हैं इसके अंदर हमने प्लांट को ग्रो करना है, बट नाउ इन द न्यूट्रिएंट सोल्यूशन वन और द अदर एलिमेंट्स दे आर लैकिंग, one or the other elements they are lacking। तो यहां पर सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है और यहां पर एक एलिमेंट डेफिशिएंट है, वन एलिमेंट इज एब्सेंट। और इन दोनों कंडीशंस के अंदर जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उनको हम कंपेयर करेंगे और कंपैरिजन की हेल्प से वी कैन इजीली सी व्हाट आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस लैकिंग एलिमेंट, राइट। तो एक फायदा यहां पर क्या होगा, थ्रू द कंपैरिजन ऑफ द वाटर कल्चर वी कैन इजीली स्टडी डेफिशिएंसी सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्स। Along with this, वाटर कल्चर की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट है वो असेंशियल है, नेसेसरी है, और कौन सा एलिमेंट है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी नहीं है। सो वी कैन फाइंड द एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट्स थ्रू द वाटर कल्चर। You know that these experiments, these cultures, they can be utilized at the commercial level for the growth of plants। तो हाइड्रोपोनिक्स को हम यूज कर सकते हैं कमर्शियल लेवल पर फॉर द प्लांट कल्टीवेशन, फॉर द प्लांट ग्रोथ। अब हाइड्रोपोनिक्स बहुत तरह का होता है। द टाइप ऑफ द हाइड्रोपोनिक्स विच आई विल बी डिस्कसिंग हियर फॉर द कमर्शियल पर्पस, फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, दैट इज thin layer water culture, that is thin layer hydroponics। So now let's discuss thin layer or thin film hydroponics। अब इस टेक्निक के अंदर जो प्लांट है हम उनको एक ट्यूब, एक ट्रॉ के अंदर ग्रो करेंगे। सो आई एम मेकिंग अ ट्यूब हियर। So this is our tube. You can see that the tube, it is slightly elevated. Yes, it is slightly elevated from one side. Yes, this is our support for the tube। अब ट्यूब के जो ऊपर ये वाली साइड है यहां पर विद द हेल्प ऑफ द सपोर्ट्स प्लांट को ग्रो करा जाएगा। So this is our support। With the help of the support, the plants, they are placed here। So in all the supports, I am not showing the plants. Only in the few I am forming here. Now one of the end of the tube, it is associated with the reservoir. In the reservoir, there is presence of balanced nutrient solution। तो यहां पर मैं रिजर्वायर फॉर्म कर रही हूं।
Right, so this is our reservoir which is containing balanced nutrient solution. अब रिजर्वायर के अंदर प्लेस करा है एक पंप. Yes, this is a pump, and with the help of the pump, now the nutrient solution, it is supplied to this end of the tube. तो इन ट्यूब्स की हेल्प से, इन पाइप्स की हेल्प से जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो ट्यूब के इस एंड के ऊपर सप्लाई करेंगे हम. अब न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इस स्ट्रॉ के अंदर फिल होगा. And you can see here the nutrient solution, it can easily move down due to the gravitational force and it will return back to the reservoir. तो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, यहां पर ये रूट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड दे रहा है. इट इज प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन टू द रूट्स इन द फॉर्म ऑफ अ thin layer of solution. That's why, what is the name of this type of the hydroponic system? That is thin film or thin layer hydroponics. Now, what are the important, what is the significance of this technique? तो यहां पर major significance, important point है, वो note down कर लेते हैं. Significance. Now, the first one is that जिन areas के अंदर soil infertile है, dry है, उन areas के अंदर हम इस technique को use कर सकते हैं for the cultivation of plants. So, it is usually practiced in the areas where there is presence of dry, infertile soil. This technique is very well used for the growth of off-season flowers as well as vegetables. Like this technique is utilized for the growth of tomato, production of tomato, then seedless cucumber, lettuce. अब ये सॉइललेस कल्चर है. सॉइललेस कल्चर है तो इट मीन्स सॉइल के अंदर जितने भी पैथोजेंस होते हैं उन पैथोजेंस का अटैक अब प्लांट को नहीं होगा. सो इट मीन्स दिस विल हेल्प टू कंट्रोल प्लांट फ्रॉम द सॉइल बॉर्न पैथोजेंस. सॉइल बॉर्न पैथोजेंस, they are controlled. Right? Next, soilless culture, it means there will be no problems of weed here. Now there will be no problem of weed, so no weeding is required. और ये जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है, इस न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का हम पीएच आराम से चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट. सो द पीएच इन द रिजर्वायर ऑफ द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, इट कैन बी इजीली चेंज्ड डिपेंडिंग अपॉन प्लांट रिक्वायरमेंट. Right? So this is all about the hydroponics. So in this class, I had discussed the different types of the essential elements. I have discussed the essential elements on the basis of their availability, on the basis of their amount in the plant. Then I had discussed the essential elements on the basis of mobility, their role,
And now this was a technique to study essential elements, that is hydroponics. And this technique can even be utilized at the commercial level for the crop cultivation, which is associated with these several benefits. Now in the next class, I will be starting with the mineral absorption. So how the minerals, they are absorbed by the plant. Yes, and along with that, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स, कि प्लांट ने एक बार जो मिनरल एब्जॉर्ब करे, अब इनकी मूवमेंट कैसे होगी प्लांट के अंदर. एंड देन द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. थैंक यू सो मच.